دوستو، اسلام کے آنے سے پہلے مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ کو بت پرستی کا گڑھ بنا رکھا تھا۔ بتوں کے نام کا طواف کیا جاتا تھا اور ان کے آگے سجدے بھی کیے جاتے تھے، اور یہی نہیں، ان بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں بھی پیش کی جاتی اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی پریشانیوں کا حل بھی مانگا کرتے تھے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سارے انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی، یعنی کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو پھر دنیا میں بت پرستی کی شروعات کب اور کس طرح سے ہوئی؟ یعنی کہ دنیا میں مورتی پوجا کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ اور یہی نہیں، پھر یہ بت پرستی کا رواج توحید کے مرکز خانہ کعبہ تک کس طرح سے پہنچا؟ یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے یہ جان کر، اسی لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کا رواج حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد سے شروع ہوا، یعنی کہ دنیا میں مورتی پوجا کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد سے شروع ہوئی۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے، جن کے نام بود، سوا، یہوس، یہود اور نصر تھے، یعنی کہ ان 5 ولی اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ یہ بزرگ گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ پھر جب ان بزرگوں کا ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت ہی رنج و غم میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک بار جب لوگ اپنے بزرگوں کی یاد میں نہایت ہی اداس بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ایک شیطان ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس میں آیا اور کہنے لگا، یہ تمہاری اس درد کی دوا میرے پاس میں موجود ہے۔ تو یہ سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے، تو اس شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ تم لوگ اپنے ان 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور پھر ان کو ایک مسکن میں رکھ دو۔ پھر تم لوگ جب بھی اپنی ان بزرگوں کی تصویروں کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہو جائے گا۔ اس طرح سے پھر یہ لوگ اس ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور اپنے ان تمام بزرگوں کی تصویریں بنا لی اور پھر صبح شام ان کی زیارت کرنے لگے، مگر یہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ بات چاروں اور پھیل گئی اور اس طرح سے پھر اور بھی لوگ ان کی زیارت کو آنے لگے اور پھر یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل وجود میں آ گئی۔ دوسری نسل کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تصویر دراصل انسانوں کی ہے اور انسانوں نے ہی بنائی ہے، اسی لیے پھر ابلیس نے ان لوگوں کو یہ پٹی پڑھانی شروع کر دی کہ یہ تمہارے معبود ہے، تم ان سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں مانگا کرو۔ یہ لوگ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور پھر یہ ان تصویروں پر پھول اور مالا بھی چڑھانے لگے۔ پھر جب تصویریں پرانی ہو گئی تو پھر شیطان کے ہی مشورے سے ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے اور اس طرح سے پھر دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا، یعنی کہ دنیا میں مورتی پوجا کی شروعات ہو گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں مورتی پوجا کی شروعات تو ہو گئی، لیکن شہر مکہ جو شروع سے ہی توحید کا مرکز رہا ہے، وہاں تک یہ بت پرستی کب اور کس طرح سے پہنچی اور خانہ کعبہ کے اندر یہ بت یعنی یہ مورتیاں کس طرح سے پہنچے؟ تو دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ شہر مکہ میں بت پرستی کا آغاز بنو خزر کے سردار عمرو بن لئی نے کیا۔ عمرو بن لئی خانہ کعبہ کے ایک بہت بڑے سردار تھے۔ مکہ کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، یعنی کہ ان کو بہت زیادہ مانتے تھے۔ اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ یہ حاجیوں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، ان کو پانی ہی نہیں پلاتے تھے بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا اور اعجاز کی بات بھی سمجھی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ شخص عمرو بن لئی اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا
वहां पर इसने बुत परस्ती को होते हुए देखा, यानी कि वहां पर इसने मूर्ति पूजा को देखा। मुल्के शाम में एक कौम आबाद थी जिसका नाम किताबों में अमाल का आया है। उस कौम ने भी अपने बुजुर्गों के बुत बनाए थे। उन लोगों का कहना था कि मानते तो हम एक ही खुदा को है, लेकिन क्योंकि हमें हमारा खुदा नजर नहीं आता है, इसीलिए हमें लगता है कि हमारे खुदा तक हमारी कोई बात नहीं पहुंच रही है। यही वजह है कि हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे खुदा बना लिए हैं। इनमें से कोई हमारा हवा का खुदा है, तो कोई हमारा पानी का खुदा है, तो कोई रिज्क का खुदा है। हम अपने इन खुदाओं से बात करते हैं, इसीलिए फिर हमारी सिफारिश हमारे बड़े खुदा से कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने होते हैं। इसीलिए हमारी इबादत भी उनके सामने अच्छी तरह से हो जाती है। अम्र बिन लई जब उन लोगों से ये बात उसने सुनी तो उसको ये बात बहुत पसंद आई, इसीलिए फिर उसने वहां से एक मूर्ति खरीद ली और वापस आकर उस मूर्ति यानी बुत को खाना काबा में रख दिया। उस बुत का नाम हुबल था। ये वो पहला बुत था जो खाना काबा में रखा गया था। हुबल इंसान की शक्ल में था, इसीलिए अहले मक्का के लोग इसे सबसे बड़ा और सबसे खास बुत समझने लगे थे। हुबल का दाया हाथ टूटा हुआ था, इसीलिए फिर मक्का के लोगों ने एक सोने का हाथ बनाकर उसे लगवा दिया था। हुबल के अलावा अरब के पुराने बुतों में से एक मनात भी है, ये भी एक मस्कन में रखा गया था। फिर लात और हुज्जा नामी बुत भी वजूद में आ गए थे। इस तरह से फिर ये तीनों बुत अरब के बड़े बहुत बड़े बुत बन गए थे। इसके बाद अरब में हर जगह बुत और बुत परस्ती ने कदम जमा लिए थे। फिर जमाना जाहिलियत में सफा और मरवा पर भी दो बुत रख दिए गए थे। सफा पर जो बुत रखा गया था उसका नाम इसब था, और जो बुत मरवा पर रखा गया था उसका नाम नाइला था। इसके बाद अम्र बिन लई वही बात कहने लगा था जो बात कौमे अमालका के लोग अपने बुतों के बारे में किया करते थे। इसके बाद अम्र बिन लई मक्का के बाकी कबीलों को भी दावत देने लगा और कहने लगा कि वो भी अपने अपने बुत बनाकर खाना काबा में लाकर रख दे, लेकिन शर्त ये रखी गई कि वो बुत मक्का की मुकद्दस मिट्टी से ही बनाए जाए। इस तरह से फिर पूरे मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत हो गई। इसके बाद मक्का का ये रिवाज हो गया था कि जिस कबीले का बुत खाना काबा के अंदर रखा होता था, ये उसके लिए बड़ी एजाज की बात होने लगी थी। आप सभी को मालूम है कि अरब के कबीले अपनी मोहब्बत और दुश्मनी दोनों के लिए मशहूर थे। अब जिस कबीले का मक्का वालों के साथ में झगड़ा हो जाता था तो उस कबीले का बुत खाना काबा से बाहर निकाल दिया जाता था। ये उस वक्त उनके खुदाओं का हाल था। कहा जाता है कि अम्र बिन लई के ताबे एक बहुत बड़ा जिन भी था। उस जिन ने अम्र बिन लई को जद्दा में दफन कौमी के बुतों के बारे में बता दिया था। इसीलिए फिर अम्र बिन लई वहां पर गया और उन बुतों को निकाल लाया और फिर हज के मौके पर उन्हें मुख्तलिफ कबीलों के हवाले कर दिया। और इस तरह से फिर हर कबीले का और हर घर का अपना अपना बुत हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस आदमी का जिक्र अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी आता है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैंने अम्र बिन लई को जहन्नम में देखा। वो अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था, और यही अम्र वो पहला शख्स है जिसने मक्का में बुत परस्ती की रस्म निकाली थी, और इसकी इस हरकत की वजह से अल्लाह का घर खाना काबा में एक के बाद एक 360 बुत रख दिए गए थे। फिर खाना काबा में ये बुत परस्ती साल दर साल ऐसे ही चलती रही। और यही नहीं, अगर कोई तौहीद का इकरार करने वाला शख्स इन बुतों के खिलाफ बात करता तो मुशरिकीन उसकी जान के दुश्मन बन जाते थे। जबकि इससे पहले मक्का में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद तो बुतों से बेजार थे, लेकिन फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी तालीमात से दूर होते चले गए और बहुत सारी बुराइयों में घिरते चले गए, और फिर उस प्यारे नबी का इंतजार करने लगे जिनके बारे में
गुज़िश्ता आसमानी किताबों में बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कबीला कुरैश के सबसे आला खानदान में अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी का ज़ुहूर हो गया तो फिर आप बचपन से इस बुत परस्ती के खिलाफ हो गए थे। इन बुतों के खिलाफ बोलने की वजह से मुशरिकीन आपकी जान के दुश्मन तक बन गए थे। लेकिन आखिरकार फतह मक्का के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अल्लाह का घर खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि फतह मक्का के दिन अल्लाह के प्यारे नबी खाना काबा में रखे हुए बुतों को अपने हाथ की छड़ी से मार रहे थे और साथ ही कुरान पाक की एक आयत तिलावत फरमा रहे थे। उस आयत का तर्जुमा यह है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला है। इसके बाद हर एक बुत औंधे मुंह गिरता चला गया। फतह मक्का में शामिल सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में मक्का आए। वहां पर बैतुल्ला के इर्द गिर्द 360 बुत रखे हुए थे जिनकी वहां पर पूजा की जाती थी। ये देख कर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फौरन ही हमें हुक्म दिया कि इन सब बुतों को गिरा दो। फिर हम सब ने ऐसा ही किया और उन सारे बुतों को गिरा दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर से वही आयत इरशाद फरमाई और इस तरह से आपने अल्लाह के घर को बुतों से पाक कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को तौहीद पर कायम रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो आप इस मालूमात को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, ताकि लाइक करने से वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।